by Mr. S.K. Sharma, Mrs. Raj Pal, and Mr. Lakshmi Chandra. Kindly welcome them with a warm round of applause. Principal, sister, respected teachers, and everyone gathered here. It is a moment of great pride to stand here today. As someone who has witnessed the dedication, hard work, and love my mom has poured into this institution over the last 31 years. As a daughter, I have seen her passion for her students, tirelessly working with the artistic hands and creative mind to bring joy to their learning. Truly, this place has been more than just a workplace for her. Even on the most challenging days, she has always shown up with a heart ready to serve.
Mama, your kindness, strength, and unshakable faith have been a light to so many around you. Today, we celebrate you. I thank God for His goodness and His faithfulness over your life. I pray that in whatever you do, you may prosper, and may the grace and favor of God follow you all the days of your life. You shall flourish like a palm tree. I am deeply thankful to this institution and to everyone who has been a part of our journey. Thank you, one and all. To the Lord, for He is good, for His steadfast love endures forever. From the Bible. A very blessed morning to one and all present here. Our most respectful Principal, Reverend Father Nelson, our Primary in charge, Sister Vinaya, our Primary Coordinator, Ma'am Shama, my dear colleagues, and all gathered here. I am so grateful to God for His love and kindness towards me during these 60 years of my life. Thank you all for being here to mark this special milestone with me. After 31 years in this institution, it feels surreal to be standing here reflecting on a journey that has been nothing short of incredible. I am filled with feelings of joy and a little sadness mingled. Teaching the primary, pre-primary students has been more than a profession to me. It has been a calling and truly a blessing. Each child in my classroom taught me something new about love, patience, curiosity, and wonder. Their smiles made my every day worthwhile, which I will always cherish. A heartfelt gratitude to the management, principal, sister in charge, Ma'am Shama, and to all those principals over the last 31 years of my profession. I thank you for your motivation and guidance to give my best. I sincerely thank my KG teachers and entire Anselm family for your constant support and encouragement. We have laughed together, worked together, and stood by one another through every school event and challenge. A big thanks to the office staff and the maintenance staff for all the timely help provided. As I begin a new phase of my life, I do so with a heart full of warmth and cherished memories. I thank each and every one of you from the core of my heart. All of you will always be in my prayers. I pray that God may shower His blessings on each one and keep this institution a temple of learning and always on the peak of success. Thank you and God bless.
नजरें मिलते ही नजरों से नजरों को चुराए, कैसी है तेरी जो तू पलकों को झुकाए। रब जो पोशीदा है उसको निहारे तू, और जो गर्विंदा है उसको टाले तू। तेरी झलक शर्फी शिवानी नाम तक बर्फी, तेरी झलक शर्फी शिवानी बातें करे तो हर्फी। This is the tribute to Delilah. थोड़ा रंग घुमा के जैसे लगा के तुमको मिला के आ जाओ सारे मुंडू बना के, तुमको थोड़ा रंग घुमा के जैसा चश्मा लगा के तुमको नाक में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मुंडू बना के। शब्द रूपी माला पिरोकर चंद अशहारों को शब्द रूपी माला में पिरोकर मैं आगाज करता हूँ। चंद अशहारों को शब्द रूपी माला में पिरोकर मैं आगाज करता हूँ। रहे सलामत आप तीनों, आज आपकी सेवा नृत्य का दिन है। रहे सलामत आप तीनों, ये दुआ खुदा से आज करता हूँ। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, फादर शुभम, सिस्टर्स, मैम शमा, समस्त एंसलम फैमिली मेंबर्स, मैम बीना, सर गहलोत और मिस्टर सुनील सर में पधारे हुए सभी फैमिली मेंबर, आम तक आप सभी को जय भगवान। सेवा नृत्य का शब्द आते ही एक ऐसा ख्यालात सामने आ जाता है कि यार हम सेवा नृत्य होने जा रहे हैं, इसके बाद क्या होगा। सबसे पहले तो मैं बीना आपको बहुत बहुत मुबारक हो, जब भी आपसे मिले आपने तहे दिल से अपने खुले मन से हमसे बातचीत की, और सर के साथ हम कई प्रोग्रामों से सम्मिलित हुए हैं, तो इनसे भी मैं काफ़ी वाकिफ़ हूँ। तो आपको बहुत बहुत बधाई आज के दिन के लिए। सर गहलोत, गह और लोत ये अलग अलग अर्थ हैं, इनको एक कर दिया है गहलोत। सर का सरनेम गहलोत हो गया है। गह यानी नाभि, लोथ एक आयुर्वेदिक दवा है, वाइट कलर की आती है, और उसको अगर हम
कोबरे के तेल में मिलाकर नाभि पे मसलें तो पूरे बॉडी का संचार करते हुए अपना जितने भी कष्ट तो बाहर करती हैं। ऐसे ही सर पेन चलाते चलाते सबका कष्ट बाहर करते हैं। सर के साथ में अच्छे समय गुजरा और इन्होंने अपनी अच्छी सेवा दी है। सभी से हंसमुख तरीके से बात करते करते आज ये अपने सेवानिवृत्ति के समय पर पहुंच गए हैं। तो हम इनको तहे दिल से सर आपको इन मुबारक को धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे लिए एनएसएम परिवार के लिए बहुत से कार्य किए हैं। आपको तहे दिल से धन्यवाद और आज का दिन मुबारक हो। मिस्टर एरन सुन्नी, ये नाम सुनते ही एक दाढ़ीदार भरा हुआ चेहरा, एक हष्टपुष्ट व्यक्ति का चेहरा और बॉडी हमारे सामने आती है। आप 1991 31 जुलाई को हमारे एनएसएम परिवार में शामिल हुए। आप फादर जोस एनिकट और साथ में बिशप के ड्राइवर रहे। 1992 तक ये ड्राइविंग करते रहे, एम्बेसडर कार चलाते थे। 1993 के अंदर फादर जोस एनिकट जो थे प्रिंसिपल, उन्होंने आपसे कहा कि आपको बस चलाना है और 2 महीने का मई और जून इनको छुट्टी दे गया। आप 2 महीने बस की ट्रेनिंग लेकर के और जुलाई से इन्होंने बस चलाना प्रारंभ किया। तब से लेकर खट्टी मीठी यादों के साथ आज 34 साल इनकी सर्विस को पूर्ण होने जा रहे हैं। बहुत सी खट्टी मीठी यादें इनके साथ में जुड़ी रही। बस में आने के बाद एक इनका ग्रुप बना था, तीनों ड्राइवर, तीनों कंडक्टर, फिर लोग इतनी हंसी मजाक करते थे, इतनी हंसी मजाक करते थे, शायद हम लोगों ने कभी नहीं करा हो। वहीं जब बस हुआ काम चलता था तो वहीं पार्टियाँ चलती, खूब आनंद उठाते। ऐसे करते कर अपने जीवन को काफ़ी आगे बढ़ाते हुए फादर से सम्मिलित होते थे। कई प्रिंसिपलों के साथ में रहकर इन्होंने अपना कार्य किया। फादर सुसई जब हमारे प्रांगण में आए और प्रधानाचार्य कार्य संभाला, तब से आपने यहाँ एक सुपरवाइजर की पोस्ट पे उपलब्धि हासिल की और सराहनीय काम करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाया। सभी को साथ में निभाते हुए आज ये अपने मुकाम पे पहुँचते हुए इस जगह पर पहुँचे हैं। सेवानिवृत्ति आने के बाद में सबके जहन में क्या आता है, क्या हम रिटायर होने क्या होगा। इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता, उसका शरीर बूढ़ा हो जाता है। उसकी आत्मा कभी बूढ़ी नहीं थी, उसकी आकांक्षाएं कभी बूढ़ी नहीं होती। वो रिटायर के मिनट के बाद भी कमाना चाहता है, चाहे उसका परिवार में सब सक्षम हो या ना हो, लेकिन उसकी नज़र में उनके परिवार के लिए कुछ ना कुछ रिटायरमेंट के बाद भी करना ही है। मैं समझता हूँ सभी ने कुछ ना कुछ तैयारी कर रखी होगी। मैम आपके लिए तो सर हैं, आपको तैयारी की ज़रूरत नहीं। सर गहलोत ने भी तैयारी कर रखी होगी रिटायरमेंट के बाद में क्या करना है। ऐसा ही हमारे सुन्नी भैया ने भी तैयारी कर रखी है। थोड़ा मैंने इसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि कुछ, लेकिन ठीक है हमारा बराबर मिलान नहीं हो पाया किसी कारणवश, लेकिन वो चीज़ मेरे जहन में आ गई सोचना में, कभी ध्यान आ गया। देखिए रिटायरमेंट के बाद सुनने भैया का क्या कहना है, मैं आपको अच्छी तरह समझाता हूँ। ये रिटायरमेंट होने जा रहे हैं, इनके परिवार में आपकी धर्मपत्नी शिक्षिका हैं, बड़े डॉक्टर अभी भी डॉक्टर्स बन करके हमारे सन फ्रांसिस में ज्वाइनिंग की है। उनसे छोटे पुत्र भी शिक्षक हैं। अच्छा भरा पूरा परिवार, उन्होंने अपने बच्चों के लिए काफ़ी मेहनत करी। फिर भी सक्षम होने के बाद भी इनका नज़रिया कुछ और कि नहीं मुझे कुछ करना है और होना भी चाहिए। तो आप इनका थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इंश्योरेंस फैमिली एक दिन परिवार को बैठा के लिए बातचीत कर रहे थे, तो इन्होंने कहा यार अब तो मैं रिटायर होने जा रहा हूँ, मुझे कार्य क्या है हम, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले इन्होंने मैडम का नाम लिया ओवैसी का। भाई मैडम को छोड़ना है 3000 रुपये,
मैडम को छोड़ना है 3,000 रुपये, उसके बाद भतीजे को छोड़ना है 3,000 रुपये, उसके बाद बेटे डॉक्टर को छोड़ना है, उनसे भी 3,000 रुपये, लास्ट में भतीजे को छोड़ना 3,000 रुपये, यानी 12,000 रुपये कलेक्शन मेरा हो गया। लेकिन फिर भी चोस बाकी है। अब इनकी चोस देखी, 12,000 का काम नहीं चल रहा है इनका। उसके बाद उनके ध्यान में आया कि यार अपने एक भाई जी भी काम करते हैं, तो रिटायरमेंट के बाद में कि झाड़ू पोछा तो मैं कर लूँ, उनकी क्या जरूरत है। तो 3,500 रुपये उनके। तो इनकी कमाने की जो शक्ति है या इच्छा शक्ति प्रबलता है, उसके बाद भी जारी है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए और ऐसे लोगों के लिए हमें कुछ सीखने को मिलता है। और सुन्नी भैया तो एक सक्षम परिवार और अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं। ये हमेशा ही अपने परिवार से क्या अपने एंसलन फैमिली से प्रधानाचार्यों से काफ़ी मुत्तफिक रहे और उनके कार्य में इन्होंने अपना कार्य किया है और हमेशा अपने जीवन को एक आधार बनाकर चले हैं। आज अपने 34 वर्ष पूरे होने पर हम आपको पूरे फैमिली एंसलन फैमिली की तरफ से बहुत बहुत बधाई देते हैं। आप सदा स्वस्थ रहें, ईश्वर आगे आपके जीवन में लंबी उम्र अता फरमाएं, हर हारी बीमारी से आपको बचाए। और आप सभी को एक बार धन्यवाद और एक बार फिर आपको सबको शुभकामनाएं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद जो आज मुझे रिटायरमेंट का ये फंक्शन के लिए बोलने का अवसर दिया है। मैं 1991 में जब मैं यहाँ पहली बार स्कूल कैंपस में आया था, जब एक मस्त मलंगर था, बिल्कुल टेंशन ही नहीं थी किसी बात कि क्या काम करूँगा क्या नहीं करूँगा। फादर एलिकट ने मुझसे पूछा कि आप क्या जानते हो। मैंने कहा मैं ड्राइवर हूँ। कौन सी गाड़ी है? मेरे पास छोटी गाड़ी कोई सी दे दो, मैं चला लूँगा आराम से। और वो बड़े अच्छे आपसे और बड़ा आराम से। मैंने फादर मैं चलाता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। तो फादर ने बोला ठीक है, तो आप एक काम करो, यहाँ पे प्लेस है, वहाँ पे जाना, फादर वल्ली है, उनसे आप मिलना। मैं जाके मिला, जैसे फादर ने विश किया, फादर हमारे सेंट पॉल प्रिंसिपल थे स्कूल में। भाई अरे सुननी तू ड्राइवर बन गया? मैंने हाँ फादर। कितनी बार टक्कर लगाया? मैंने फादर आपके साथ पहली बार लगाऊंगा मैं। वही कर देता है ऐसे बोलता हूँ। उसी दिन मुझे चाबी दे दी उसे टाइम और कहा कि आप अब यहाँ से जाना सिस्टर से मदार में उनको ले जाना। ये 31 जुलाई मुझे यूँ याद रहती है कि हमारे बिशप इंग्लिश से उनका फीस थे और फीस यहाँ सेलिब्रेट होता था दोपहर के टाइम पे। फादर वगैरह सिस्टर्स वगैरह आते थे, उन सिस्टर को लेने गया था। और आज वही तारीख है 31 जुलाई। तो ये तारीख को मैं भूल नहीं सकता हूँ। और स्पेशली जो मेरे साथ वाले दोस्त थे, जैसे जानते हो आप लोग फ्रैंकी, पीटर वगैरह सब, जो हमारा ग्रुप था, अशोक भाई जो बोल रहे थे वो सच बोल रहे थे। हमारा टाइम स्कूल टाइम इतना अच्छा, इतना मस्त, हर कोई परेशानी नहीं। कभी स्कूल में बसों को बच्चों को लेकर दूर जाना है, कभी कहाँ जाना है, स्कूल के रोज़ की। और स्पेशल उन बच्चों की याद आती है, छोटे छोटे से बच्चे जो बेबी ट्रिट मारते थे। वो जब बस में बैठते थे, बस में बैठ कर जब उतरते नहीं थे, उतरने के बाद यदि हम खड़े हो जाते तो रोते थे हमको देख के। हम जैसे भीड़ नहीं होते आगे चलते, हम चलते हमारे पीछे पीछे और क्लास तक बच्चों के साथ जाते थे, तो बच्चे चलते थे। वो दिन मुझे बहुत याद आते हैं, वो बेबी ट्रिप वाले बच्चों के बड़े प्यारे होते थे वो। उनको देख के सारी परेशानियाँ दूर हो जाती थी। वो चीज़ें मैं कहीं भूल नहीं सकता स्कूल के अंदर। और मेरे जो सहयोगी हैं सारे के सारे, जो आज वो पीछे बैठे, मैं भी वहीं बैठता था। पर आज बैठे मज़ा नहीं आ रहा मुझे, वही मजा आता था बैठे। जब वो पीछे से गाना गाते हैं, कोई ग्रुप गाना गाता है तो हम बैठे हंसते थे, तो हंसी को मज़ा नहीं था, मज़ा वही आता था। और मैं आप लोगों से, टीचर्स वगैरह सबसे और मेरे सहयोगियों से, मुझसे जो भी ठीक है, मेरा काम ऐसा था कभी कभी मुझे गुस्सा भी आ जाता था और मैं थोड़ा जोर से बोल देता है। उन सभी चीज़ों के लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि मैं कोई इंटेंसी किसी से मेरा कोई ऐसा नहीं था। पर कभी क्या होता है, अब हमारे फादर प्रिंसिपल जो बैठे हैं सामने, ये तो बहुत अच्छे हैं, सच्ची बोल रहा हूँ मैं। इनका गुस्सा तो है ना, जो गए प्रिंसिपल हैं आप सभी जानते हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल गए, मेरे तो 7 प्रिंसिपल थे। तो उनका जो हल्का गुस्सा है ना, वो उनका भारी गुस्सा भी नहीं इनका। तो
और मैं तो सच बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ, क्योंकि इनके साथ काम करना मेरे लिए अभी मैं बोल नहीं सकता कि हम जब स्कूल कभी कभी ऐसा होता था कि कभी घर से निकलते कभी कुछ बात हो जाती थी, अरे यार स्कूल पता नहीं क्या होगा, पर फादर के टाइम में कभी टेंशन ही नहीं मुझे। इसका जब भी आते फादर का चेहरा सुबह को बड़ी होते खिलता हुआ चेहरा दिखता था फादर का हमेशा, तो कभी टेंशन नहीं होती। फादर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी यही है आप लोगों से और मेरे दोस्तों सबसे कि कभी भी काम करने में आओ, कभी टेंशन लेके मत करना। टेंशन लेके तभी अपन को काम करना है, नहीं टेंशन है तभी काम करना, काम तो करना ही है। 100 कुर्सी लगानी तो लगानी है, 1000 करना तो करना ही है। तो आप लोग कभी टेंशन मत करना, हमेशा खुश रह के और मस्त रह के काम करना। क्योंकि आप लोग जानते हो स्पोर्ट्स की तैयारी करने अपन लोग खड़े होते थे एक साथ एक यूनिफॉर्म में, सब जब ट्रैक डालते थे, पिक्चर थी, फोटो खींची हुई थी राजेश की, बड़ा अच्छा लगता वो चीज़ों को याद करके मुझे। तो कभी भी टेंशन मत करना, हमेशा खुश रह के सबके साथ रह के काम करना, बस यही आप लोग से मैं बोल सकता हूँ। थैंक यू फादर, थैंक यू सर, थैंक यू। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी तुम गलास आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया, आज फिर दिल को हमने समझाया, जिंदगी तुम गलास आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। जाओगे तो सोचेंगे, तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, जिंदगी तुम गलास आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। हम जिसे हम जिसे गुना नहीं सकते, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, जिंदगी तुम गलास आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया।
Shama ma'am, teachers and the family members of the person staff who are retiring. Very beloved Veena ma'am, beloved Satyanarayan sir और इनू भैया, इरेलियस नाम है, मैं तो इनू ही बुलाता हूँ, सबको ही वही बुलाते हैं आपको. Very good afternoon to all of you. Sorry, still good morning only. It's a day of mixed feeling for me. Dukhi jarur, I'm feeling emotionally, sad because so dedicated staff, when you miss from the Lord, it is disheartening, disappointing. मेरे साथ सिर्फ 3 साल इन तीनों ने काम किया, खूबी से काम किया. इनसे शायद बहुत कम बातें होती थी. सर सत्यनारायण सर से तो रोज होते थे, इनू भैया जब भी काम करते थे तभी तो बातें होती थी. वीणा मैम से बहुत कम, 3 साल में कितने बार बहुत कम बातें हुई हैं. लेकिन इन्होंने इसलिए कम बातें होती हैं क्योंकि इनसे कुछ बोलना ही नहीं पड़ता था. They were always committed, doing their duties very dearly, in a committed way, without, there was nothing there, but then we had chances to learn. So on this auspicious occasion, and I am grateful, I am so happy also for the dedicated service, the contribution they have given to this institution, our school. They have touched the lives of so many. Now all of us who are connected with this school, whether you are a teacher or the domestic staff or anyone, all of you are teachers. Because teaching is not only a classroom business. All of you, in one way or the other, are teachers. I have seen a बच्चे जो डोमेस्टिक स्टाफ है या गेट कीपर है, उनके पास भी आकर उनके पैर छूते थे, उन्हें विश करते थे, उनसे बातें करते थे. तो बच्चे भी इनसे भी सीखते थे और सीखते हैं. तो आप सभी one way or the other teachers, all of you are teachers. बच्चों को हम साफ सफाई सिखाते हैं, बच्चों को एटिकेट सिखाते हैं. ये सब सिर्फ टीचिंग, मतलब टीचर्स का काम, those who are teaching in the school, the so-called teachers, नहीं, सबका काम है. हम सब मिलकर बच्चों को सिखाते हैं. So when I was thinking about the teachers from the Bible, Saint James, he writes in his letter, chapter 3, verse 1, he says, he doesn't promote everyone to be teachers. He tells the believers, not all of you should be teachers. He says, if you will be judged very strictly by what you teach. He is not encouraging everyone to be teachers because you will be strictly judged by what you teach. Today is that judgment day for all these 3 staff members, Veena ma'am, Gehlot sir और आप. न्याय का दिन है आज, और इस न्याय में तो आप सब पास हो गए हैं, क्योंकि आपके परिवार ने, स्टाफ मेंबर्स ने जितने भी बोले इतने खूबी से, कितने अच्छी बातें आपके लिए बोले हैं. आप सब पहले से ही अंतिम न्याय के लिए, प्रभु यीशु कहते हैं उस दिन प्रभु यीशु ईश्वर के पुत्र महिमा में पधारेंगे और आपको अपने दाएं और बाएं खड़ा कर देंगे. जो अच्छे हैं उनके दाएं, और उनसे कहेंगे शाबाश, आपने तो अच्छे भले सेवक, आपने जो किए हैं अच्छा है, उसके लिए आपको स्वर्ग राज्य प्राप्त होंगे. वो तो अंतिम न्याय के बारे में कहते हैं. ऐसे ही न्याय का एक झलक अभी आपके सामने है. आप तीनों के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपने जो काम किए हैं खूबी से किए हैं. नहीं तो इतनी अच्छी बातें कोई नहीं बोलेंगे. ना सिर्फ इधर आपके रिटायरमेंट इसलिए बोला नहीं है, जो भी मैंने सुना है आप लोगों के बारे में बहुत अच्छा सुना है, बहुत सही सुना है. वीणा मैम, आपका जो समर्पण, आप तीनों के लिए कॉमन एक बात है, आप तीनों अपने परिवार से प्यार करते हैं. यू आर ऑल फैमिली पीपल. वीणा मैम मुझसे डायरेक्टली नहीं बोला, बट अभी मेरा जो द टाइम लेफ्ट आई विल हैव टू स्पेंड विथ माई फैमिली. शी लव्स दिस जॉब, बट देन नाउ शी वांट्स टू बी विथ हर फैमिली द रेस्ट ऑफ द टाइम. ऐसे ही आप तीनों, इनू भैया को मैंने लाडपुरा में तब से देखा हूँ, पूरे परिवार को लेकर उधर प्रार्थना करने के लिए आते थे.
Always I was seeing him with his family. हमेशा परिवार के साथ, परिवार के लिए जीते हैं. सत्यनारायण सर भी परिवार के ही सोच में रहते हैं, परिवार के तो फैमिली में. Those who love the family, they love everyone. They can love everyone. They see everyone as family. इन तीनों ने तो इस परिवार को, इस our staff, our जो Anselm family को family ही माना है, परिवार माना है. इसलिए that's why they were able to be dedicated to their work. तभी तो पूर्ण समर्पण भाव से आप काम कर पाए. सत्यनारायण सर जो प्रोफेशनल सीकर से जो बोलते हैं, आप सबको पता है, आप कितने भी कोशिश करो कुछ बात जानने की, कभी आप जान नहीं पाएंगे, जितने भी कोशिश करो. ये ऑफिस की बात है, सिर्फ उनसे ही सीमित रहते हैं. That's why all the principals still think of him. So dedicated. ऐसे ही डेडिकेशन आपके जीवन में परिवार के लिए भी है, संस्था के लिए भी है, आपके लिए अपने पर्सनल लाइफ में है. आप तीनों में, इनो भैया भी हो, वीणा मैम हो. So you love you are all family people, and I want everyone to learn from this. If you love your family, dedicated to your family, you will be dedicated to every place where you are working. जो प्रेरणा आज आपने हम सबको दी है, मुझे भी सीखना है, हम सबको सीखना है. सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, जो डेडिकेशन, जो कमिटमेंट आपने अपनी संस्था के लिए दी है, जिस हिसाब से आपने काम किया है, आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू. इन भैया और सत्यनारायण सर और वीणा मैम, थैंक यू. गॉड ब्लेस यू फॉर वॉट एवर यू हैव डन ऑल दीज ईयर्स, द कमिटमेंट यू हैव शोन. आपने काफ़ी लोगों की, काफ़ी बच्चों की, काफ़ी स्टाफ के दिल को छुए हैं. उन सब की प्रार्थना आपके साथ है, हमारी प्रार्थना आपके साथ है. आई थैंक ऑल ऑफ यू ऑन बिहाफ ऑफ द मैनेजमेंट एंड द स्टाफ, ऑल ऑफ अस हियर, एंड ऑल द चिल्ड्रन who have passed through your hands. You have taught them, you have guided them, you have helped them. All their prayers are with you. Go ahead and continue to excel in your life. Whatever you have been to this day, you will continue to be. At the same time, with the family, you will be doing much great work. Thank you. God bless you. God bless your families. God bless all of you. Keep all of you happy and healthy all the way ahead of your life. Thank you. God bless you all.